قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات 9 ستمبر کو دوحہ پر اسرائیلی حملے کو قطر کی خود مختاری اور سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ مشکل وقت میں امیر قطر شاہی خاندان اور قطری عوام کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان۔ شہباز شریف نے کہا اسرائیل کی بڑھتی جارحیت کو روکنے کے لیے امت مسلمہ کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ اسلام آباد سے عثمان خان کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان کا دوحہ پر اسرائیلی حملے کے خلاف قطر کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کا اعلان۔ وزیراعظم شہباز شریف نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کو مکمل یکجہتی اور حمایت کی یقین دہانی کروا دی۔ 9 ستمبر کو اسرائیل کی بلا اشتعال جارحیت کی شدید مذمت، وحشیانہ اور گھناؤنے حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار، پاک قطر تاریخی اور برادرانہ رشتوں کا اعادہ کیا۔ امیر قطر کے ساتھ ملاقات میں وزیراعظم نے کہا اسرائیلی حملہ قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلم کھلا خلاف ورزی بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے۔ پاکستانی قیادت اور عوام کو اس پر سخت تشویش ہے۔ اس مشکل وقت میں پاکستان امیر قطر شاہی خاندان اور قطری عوام کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی ڈھٹائی سے جاری جارحیت کو روکنا ہوگا۔ امت مسلمہ کو اسرائیلی اشتعال انگیزیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت۔ شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیلی جارحیت کا مقصد علاقائی استحکام کو نقصان پہنچانا ہے۔ ایسی کارروائیاں مشرق وسطیٰ میں امن کی سفارتی کوششوں کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ وزیراعظم کا 15 ستمبر کو غیر معمولی عرب اسلامی سربراہی اجلاس کی میزبانی کے قطر کے فیصلے کا خیر مقدم۔ OIC کے ساتھ مل کر سربراہی اجلاس کے مشترکہ انعقاد کے لیے رضامندی کا اظہار کیا۔ امیر قطر کا اظہار یکجہتی کے لیے دوحہ کا دورہ کرنے پر وزیراعظم سے اظہار تشکر۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن اور فلسطینی عوام کی حمایت کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والوں کی نماز جنازہ دوحہ میں ادا کر دی گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق نماز جنازہ شیخ محمد بن عبد الوہاب مسجد میں ادا کی گئی۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ شہداء کی میتوں کو فلسطینی اور قطری پرچموں میں لپیٹا گیا تھا۔ شہداء کی تدفین مسمیر قبرستان میں کی گئی۔ 2 روز قبل قطر پر کیے گئے اسرائیلی حملے میں 6 افراد شہید ہو گئے تھے۔ قطر پر اسرائیلی حملہ، عرب ممالک کا 2 روزہ ہنگامی سربراہی اجلاس طلب کر لیا گیا۔ اجلاس 14 اور 15 ستمبر کو دوحہ میں قطر کی میزبانی میں ہوگا، جس میں اسرائیلی جارحیت پر مشترکہ رد عمل دیا جائے گا۔ اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والوں کی نماز جنازہ دوحہ میں ادا کر دی گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق نماز جنازہ شیخ محمد بن عبد الوہاب مسجد میں ادا کی گئی۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ شہداء کی میتوں کو فلسطینی اور قطری پرچموں میں لپیٹا گیا تھا۔ شہداء کی تدفین مسمیر قبرستان میں کی گئی۔ 2 روز قبل قطر پر کیے گئے اسرائیلی حملے میں 6 افراد شہید ہو گئے تھے۔ قطر پر اسرائیلی حملہ، عرب ممالک کا 2 روزہ ہنگامی سربراہی اجلاس طلب کر لیا گیا۔ اجلاس 14 اور 15 ستمبر کو دوحہ میں قطر کی میزبانی میں ہوگا، جس میں اسرائیلی جارحیت پر مشترکہ رد عمل دیا جائے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری 12 ستمبر سے چین کے 10 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ وہ چین کی اعلیٰ قیادت اور صوبائی حکام سے ملاقات کریں گے، جس میں 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت ہوگی۔ چینی حکومت کی دعوت پر صدر زرداری 12 سے 21 ستمبر تک چین کے مختلف شہروں شینگڈو، شنگھائی اور سنکیانگ کا دورہ کریں گے۔ صدر زرداری کی صوبائی قیادت سے ملاقاتیں بھی طے ہیں، جن میں 2 طرفہ تعلقات، عالمی فورمز پر تعاون، اقتصادی و تجارتی شراکت داری، سی پیک اور مستقبل کے منصوبے زیر بحث آئیں گے۔ صدر کا یہ دورہ پاک چین تعلقات کو نئی جہت دینے میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ جلال پور پیروالا کے موضع شجاعت پور میں ماں بچوں کو سیلابی پانی سے بچاتے ہوئے ڈوب کر جاں بحق ہو گئی۔ خاتون کشتی نہ ملنے پر ڈرم اور لکڑی کی مصنوعی کشتی بنا کر بند کی طرف نکلی تھی۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ سما مکرم خان سے۔ مکرم، اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے بتائیں۔ جی بالکل، جلال پور پیروالا میں بچوں کو سیلابی پانی سے بچاتے ہوئے ماں پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئی ہے۔ موضع شجاعت پور کی رہائشی 28 سالہ رابعہ بی بی نے ریسکیو کشتی نہ ملنے پر بچوں کے ہمراہ حفاظتی بند کی طرف نکل پڑی اور خاتون اپنی مدد آپ کے تحت ڈرم اور لکڑی کی مصنوعی کشتی بنا کر 2 بچوں کے ہمراہ گھر سے فلڈ بند کی طرف نکلی تھی۔ مصنوعی کشتی راستے میں ٹوٹ گئی، خاتون بچوں سمیت پانی میں بہہ گئی اور بچوں کو مقامی افراد نے زندہ نکال لیا، جبکہ خاتون کی ڈیڈ باڈی ملی ہے اور ڈیڈ باڈی لواحقین کے حوالے کر دی گئی ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔
जलालपुर पीरवाला में जिंदगी और मौत की कश्मकश। दरख्त पर पनाह लेने वाले बाप बेटी को कई घंटे बाद रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू एहलकार के मुताबिक जब वो मुतासरा बाप बेटी की मदद को पहुंचे तो बाप ने 5 साल की बेटी को कंधे पर उठाया हुआ था। रेस्क्यू टीम ने एक बच्ची समेत 2 अफराद को रेस्क्यू किया और उन्हें कश्ती पर बिठाकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। इस दौरान रेस्क्यू एहलकार ने बरवक्त नकल मकानी ना करने की वजह पूछी तो मुतासरा अफराद ने कहा कि वो मुसलसल फ़ोन करते रहे लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर जलालपुर पीरवाला में मुतासरीन का इनखला जारी। मुतासरीन को खुश्क राशन पहुंचाने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। राशन और अशिया ज़रूरिया मुतासरीन तक पहुंचाने से कई जिंदगियां बचाई गई हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का फ्लड बंद पर निगरानी कैंप कायम। मरियम औरंगजेब ने कश्तियों के जरिए शहरियों का इनखला यकीनी बनाया। जलालपुर पीरवाला में सेहत पंजाब वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक, सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात और पंजाब के दीगर वज़रा भी मौजूद इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर जलालपुर पीरवाला में मुतासरीन का इनखला जारी है। मुतासरीन को खुश्क राशन पहुंचाने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। राशन और अशिया ज़रूरिया मुतासरीन तक पहुंचने से कई जिंदगियां बचाई गई हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब का फ्लड बंद पर निगरानी कैंप कायम। बहावलपुर के मुकाम पर दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बाइस महकमा इरिगेशन की जानिब से एम्प्रेस बंद को मजबूत करने का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं एहसन अंसारी से। जी एहसन, बताइएगा। अजी देखिए, इस वक्त हम दरियाए सतलुज के एम्प्रेस बंद पर मौजूद हैं। महकमा इरिगेशन के ज़ेर इंतज़ाम ये बंद इस वक्त यहाँ पर तकरीबन 1,20,000 क्यूसिक से ज़ायद का जो सैलाबी रेला है वो बह रहा है, जबकि जो एम्प्रेस ब्रिज है वहाँ पर पानी की जो सतह है वो 13 फुट को छूने लगी है। अगर हम बात करें यहाँ पर पानी के तेज़ बहाव और हवा से पैदा होने वाली जो तेज़ लहरें हैं जिसके बायस एम्प्रेस बंद पर हम सी पिच देख सकते हैं जहां पर नमी पैदा हो रही थी और जो इंतहाई नुकसानदेह है हाई फ्लड सिचुएशन में किसी भी बंद के लिए रेजिस्टेंस बरकरार रखने के लिए ताहम महकमा इरिगेशन की जानिब से यहाँ पर मट्टी और रेत की जो बोरियाँ वो बिछाई जा रही हैं। हुकाम का कहना है कि अब तक 8,000 फीट से ज़ायद जो बोरियाँ हैं वो उनको बिछाकर बंद को महफूज किया जा रहा है, जब तकरीबन 10,000 फीट से ज़ायद जो ये लंबाई बताई जा रही है मजमूई तौर पर, जिसको आइंदा 1 से 2 रोज़ में मुकम्मल कर लिया जाएगा। कोशिश की जा रही है कि जो बहावलपुर में आने वाला जो हाई फ्लड है उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली जाए, क्योंकि अभी इस वक्त 1,20,000 क्यूसिक पानी जो है 1,20,000 क्यूसिक से ज़ायद पानी का फ़्लो इस वक्त बहावलपुर में उसको जारी है, जबकि मज़ीद सैलाब के आने का जो इम्कान है अंदर 24 से 48 घंटों में उसका इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। आगे बढ़े, आपको बताएं मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पर पानी की सतह में कमी होना शुरू हो गई है। गिरेवाला बंद के करीब मुतअद्दिद मकानात पानी में डूबे हैं। पानी की निकासी ताहाल नहीं हुई। रिहायशियों ने छतों पर बसेरा किया हुआ है। मजीद जानते हैं मोहसिन अली से। जी मोहसिन, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में दरिया चिनाब के मकाम पर पानी की सतह उसमें मुसलसल कमी देखने में आ रही है। इस वक्त मुल्तान के इलाके हेड मोहम्मद वाला के गिरे वाले बंद के मकाम पर, जहाँ पे अब भी जो लोग हैं वो अपनी घरों की छतों पर रहने पर मजबूर है, क्योंकि पानी जो है वो घरों के अंदर दाखिल हो चुके हैं। लोग यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है जो घर में रहते भी हैं। सर, ये बता दें कि पानी आपके घरों में दाखिल हो चुका है, आप छत पर रह रहे हैं, इसकी वजह क्या कहना चाहेंगे आप? मकान भी डैमेज हो रहे हैं। हम घर इसलिए छोड़ रहे कि यहाँ चोरी चकारी का हमें डर है, यहाँ चोरियाँ हो भी रही हैं, इसलिए हम जो है ना बच्चे वगैरह घर रिश्तेदारों में छोड़ देते हैं। शाम कुछ आ जाते हैं, कुछ वहाँ रहते हैं। हम यहाँ मुसलसल रह रहे हैं ताकि हमारे घर में जो कीमती सामान है जो भी है वो महफूज हो सके। की तरफ से भी कहा जाता है कि इन तमाम लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन ये लोग बसीद हैं कि अपने घर की हिफाजत के लिए अब भी इस जगह पर मौजूद हैं। जी, महकमा दाखिला ने सैलाब मुतासर इलाकों में मैसूर अफराद को रेस्क्यू करने और मुतासरीन तक इमदादी सामान पहुँचाने के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इमदादी कार्रवाइयों के लिए ऐसे मजीद 10 ड्रोन्स मंगवाए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं जहांगीर खान से, जो डायरेक्टर सिविल डिफेंस ज़ैगम नवाज के साथ मौजूद हैं। जी जहांगीर। जी, पंजाब में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई, हज़ारों अफराद मुतासिर हुए, तो ऐसे में सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने के लिए और इन तक इमदादी सामान पहुँचाने के लिए होम डिपार्टमेंट ने एयरलिफ्ट ड्रोन हासिल कर लिया है। ये एयरलिफ्ट ड्रोन है जो कि सैलाब मुतासरीन को एक मुकाम से पिक करके बआसानी महफूज मुकाम तक पहुंचा सकता है। तकरीबन 200 किलोग्राम तक वज़न ये एयरलिफ्ट ड्रोन उठा सकता है। इसकी मदद से जो इमदादी सामान है वो भी ऐसे इलाकों तक पहुंचाया जा सकता है जहां तक रसाई जो है
वो नामुमकिन हो चुकी है। डायरेक्टर सिंस जैगम नवाज से ये जानते हैं। ट्रायल इसका रन किया है इधर रावी में हमारे पास एक्सपर्ट डाइवर्स हैं हमारे अपने सिविल डिफेंस के, तो उसमें से वॉलंटियर्स के साथ हमने इनको 2-3 दफ़ा उनके मतलब फ्रॉम द मिड स्टाफ रिवर जो उसकी मेन स्ट्रीम में से उठा के किनारे पे ये सक्सेसफुली लिफ्ट कर लिया है। दूसरा इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ ये हो सकता है कि हमने लाइफ जैकेट्स या कोई और इस तरह का राशन दीगर को ज़रूरियत पहुंचानी है स्टैंडर्ड सिटीजन्स के पास, तो उसके लिए इसके साथ तकरीबन 200 kg का सामान हम डिलीवर कर सकते हैं रियल टाइम में। रावी में इसकी एक फर्जी मशक भी की गई है जिसमें सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मुकाम तक पहुंचाया गया और इसके अलावा दीगर जो रेस्क्यू के इक्विपमेंट्स है, जो सामान है, वो भी मंगवाया जा रहा है ताकि सैलाब मुतासरीन की भरपूर तौर पर मदद की जा सके और महसूर अफराद को महफूज मुकामात तक मुंतकिल किया जा सके। जी जहांगीर, आपका शुक्रिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि बहुत बड़ी तबाही हुई। हेड पंजनत, अलीपुर और सैदपुर के मकाम पर भी ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। चोरी डकैती में मुलविस लोगों को गिरफ्तार करके सख्त सजा देंगे। मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा मुकरम खान से। मुकरम बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है। आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में, जहाँ दरिया चनाब और सतलुज के मुंह जोर रेलों ने हर तरफ तबाही मचाई है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मरियम औरंगजेब साहिबा। मैडम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी है, बोट्स भी आ गई हैं, किस तरह देख रही हैं, किस तरह मैनेज हो रहा है, कितने लोगों को मजीद इवैक्यूएट किया जा रहा है? सुबह 6 बजे से ऐसा ऑपरेशन ऑर्गेनाइज्ड जारी है जिसमें रेस्क्यू 1122, आर्मी वाले 4 हेलीकॉप्टर्स और जो प्राइवेट बोट्स हैं वो सब हुकूमत के निगरानी में चल रही हैं। तो अब ये लोग रह गए हैं सिर्फ जो यहाँ मौजूद हैं, 200-250 आदमी सुबह से यहाँ था, अब ये लोग रह गए हैं। इंशाल्लाह जिस तरह ये आती हैं बोट्स, रेस्क्यू हो रही हैं, लोग वापस आ रहे हैं और शुक्र अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की निगरानी में इस वक्त रेस्क्यू 1122 वाले, सिविल डिफेंस वाले, पुलिस वाले, आप देख रहे होंगे, खुद भी देख रहे हैं आप लोग, सारे मीडिया वाले सुबह से यहाँ आ रहे हैं, सब लोग इस वक्त फील्ड के अंदर हैं। जो इंसानी कोशिश है उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन इस किस्म का जो कैटास्ट्रफी है, इस किस्म की जो आफत है, उसका 100% कवरेज जो है वो कोई भी नहीं कर सकता। इस वक्त CPO अलर्ट है, इस वक्त RPO अलर्ट है, इस वक्त मोबाइल उनकी अपनी कश्तियाँ हैं। हमें रिपोर्ट हुई है यहाँ कि लोगों ने कहीं डाका डाला है, लेकिन उसके ऊपर पूरी ओवरसाइट है। जो ओवरचार्ज कर रहे थे कश्तियों से वो भी पकड़े हैं, अरेस्ट किए हैं। और इस वक्त तमाम बोट्स में एक कांस्टेबल है जो प्राइवेट बोट है और उसकी पेमेंट भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर रही है। वज़ीर आला पंजाब ने एक कमेटी बिठा दी है जो तमाम रिलीफ और तमाम रिहेबिलिटेशन के ऊपर अपना पूरा फ्रेमवर्क बना रही है और इंशाल्लाह पूरे मुकम्मल तरीके से, जैसे एवैक्यूएशन की है 3 दरियाओं में सैलाब, इस किस्म की प्रिपेयर्डनेस, इस किस्म का हिस्टोरिक एवैक्यूएशन और रेस्क्यू कमी होती है, क्योंकि कोई दुनिया का मुल्क इस किस्म की डेवस्टेशन को 100% कवरेज नहीं दे सकता। तो इस वक्त इन सब का ताउन भी है, हमारी कोशिश भी है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह इस आफत से छुटकारा दिलाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है और रेस्क्यूअर्स का, पाक फौज का और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से भी ऑपरेशन जारी है। जी, लियाकतपुर में सैलाबी पानी में फंसे लोग परेशान हैं। प्राइवेट कश्ती माफिया की लूटमार मनमाना किराया वसूल करने लगे हैं। मजीद जानते हैं ताज गौस से। जी ताज, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लियाकतपुर में बाना रोया के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पे 2 दरियाओं का मिलाप होता है, सिंध और चनाब। यहाँ पे बड़े पैमाने पर तबाही मचाई हुई है। और यहाँ पे अगर बात की जाए प्राइवेट कश्ती माफिया के हवाले से, जिस पर समा मुसलसल आवाज़ उठा रहा है, आज टीम समा बाना रोया पहुँची है तो यहाँ पे मुतअद्दिद कश्ती माफिया जो थे टीम को देखकर यहाँ से फरार हो गए हैं। एक शख्स यहाँ से मौजूद है, उससे पूछते हैं कि कश्ती वाले प्राइवेट जो हैं वो कितना किराया लेते हैं सामान महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का? 50-50 हज़ार, 30-30 हज़ार लेते हैं। जो इतना रेस्क्यू वाला कोई पहुंचाने वाला नहीं है। जी, आपने इनसे भी जाना है कि यहाँ पे जो प्राइवेट कश्ती माफिया है वो 30 से 50 हज़ार तक वसूल कर रहे हैं। मकामी इंतज़ामिया को चाहिए कि वो फौरी तौर पर बाना रोया जो प्राइवेट कश्ती माफिया है, इन कश्तियों को अपने कब्जे में लेकर सैलाब से मुतासरीन को महफूज मकाम पर पहुँचाएँ। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से बच निकलने वाले मजबूर हैं। बेआसरा और बेघर अफराद अब लुट रहे हैं इंसानों के रूप में छुपे दरिंदों के हाथों। मुकरम खान की रिपोर्ट देखिए। जिन्हें कुदरत ने सैलाब से बचा लिया वो लुटेरों से न बच सके। जलालपुर पीरवाला के मकीनों का दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा। जिधर नजर दौड़ाएं
माफिया और डाकू कहर ढा रहे हैं। बेला, बस्ती मोहाना और संधेला के इलाकों में सैलाब से जान बचाकर निकलने वाले मुतासरीन जब थोड़ी सी सांस लेने की कोशिश करते हैं तो नई मुश्किल आन घेरती है। 6-7 बंदे हैं, बड़ी किश्ती लेके घूम रहे हैं, उनके पास असला नहीं है, उसका सामान लेके टूट जाते हैं। कश्ती को लूट लिया, जो सामान बाकी पीछे बचा था वो भी खत्म हो गया। बड़ी कश्तियों पर सवार डाकू पानी में घिरे खाली घरों से कीमती सामान लूट लेते हैं। जिंदा बच जाने वालों से भी बचा कुचा सब कुछ छीन लिया जाता है। जो घर में सामान पड़ा है, प्लेटें, सोलर, जो सामान पड़ा है वो भी उठा के रात को आते ले जाते हैं। तो डाकू बैठे हैं, उन्हें लूट लिया सामान जो सब घरों में लाता है ना, वो पता नहीं है, जो उन्हें उठा लिया है। कोई तहफ्फुज ना कोई कानून, पुरसाने हाल भी कोई नहीं। लोगों का एक ही गिला है, क्या आफत से बच जाने वाले इंसानों से ये जुल्म कोई रोक पाएगा? कैमरामैन अकमल खोकर के साथ मुकर्रम खान, समाज, जलालपुर पीरवाला। अकेला में अंधेरी रात, हर तरफ सैलाब, 5 फीट का कोबरा, सिर्फ दरख्त की टहनी का सहारा था। शाम को अल्लाह का वास्ता दिया तो उसने रास्ता दिया। वजीराबाद में पेश आए हैरत अंगेज वाक़े की कहानी समा पर। डंगर खोल दिया, खाल दिया, पानी चोखा हो गया, उन्होंने खोल लिया, पानी बद गया। तूड़ी दी धाड़ ते मैं घंटा को बैठा वहां, और तूड़ी दी धाड़ भी थल्लों पानी ने रोड छड़ी गई। ਉਹਦੇ ਤੋਂ मैं पानी च डिगा, पानी डिग के रिड़दा अगे दरख्त गया, तरेक दा दरख्त सी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ मैं जाके बैठा वहां। ਉਹ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੁੜਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੂਤ ਦਾ ਦਰਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਣ ਲਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ 4 ਤੋਂ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸੱਪ ਤੇ 4-5 ਚੂਹੇ, ਇੱਕ ਟਾਣੀ ਤੇ ਸੱਪ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਣੀ ਤੇ ਚੂਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਿਆ, ਸੱਪ ਛੂਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੱਪ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਆਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸੱਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੂਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਂਦਾ, इंतजामिया नहीं। उधर लाहौर के इलाके फरुखाबाद में सैलाबी रेले से घर मिसमार होने पर मुतासरीन ने मलबे पर खैमा लगा लिया। हमारी नुमाइंदा सामिया सईद वहां पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फरुखाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर किसी वक्त में यहाँ पर सैलाब के रेले से पहले लोगों के पक्के घर जो थे वो मौजूद थे, जो कि अब बिल्कुल मसमार हो चुके हैं, और यहाँ के लोग अपनी मदद आपके तहत खैमा मुकीम होने पर जो है मजबूर हो गए हैं। तो सबसे पहले इस बच्चे से जानते हैं, मुझे आप बताइएगा बेटा। सैलाब आया था, फिर पानी आके हमारा घर ले गया, फिर चोर आए, फिर चोर हमारे घर ले, फिर हमारे सा कुछ ले गया चोर, फिर गाडर, मंजिए, बुए सा कुछ ले गए। पिछली जुमेरात के दिन यहाँ पर शराबी रेला आया और हमारा घर उसमें बह गया। तो ये जो हमारा घर था ये हमारे बाप दादा की कमाई का नहीं था, हमने यहाँ पे मेहनत करके बनाया था। बच्चों के जूते बनाता हूँ, छोटे बच्चों के, लेकिन मुकम्मल नहीं मैं बनाता। अपर मैन हूँ तो मैं अपर बनाता हूँ उसके। जी बिल्कुल, आपने सुना कि ये एक मेहनत कश हैं और इन्होंने मेहनत करके ही पहले भी अपना घर बनाया था और अभी भी बड़े पुरुम्मीद हैं, और इसी तरह मेहनत का सिलसिला भी जारी है। और यहाँ पर खैमे में अपने नवासे और नवासियों के साथ, अपनी बेटियों के साथ मौजूद हैं, और अभी भी मेहनत का सिलसिला जो है वो जारी है। जी, पाकिस्तान में तारीख का बदतरीन सैलाब देखा गया। मशरकी दरियाओं में 15 लाख क्यूसिक पानी आया। पहली बार ऐसा हुआ कि दरियाओं में 2 घंटे के दौरान 6 लाख क्यूसिक पानी बढ़ा। सदनाई और कादराबाद बिराज के अलावा किसी बिराज पर कोई खतरा नहीं। वज़ीर बराए आपाशी मोहम्मद गाजिम अली पीरज़ादा की प्रोग्राम समा डिबेट विद इफ्तिखार अहमद में गुफ्तगू। साबिक वज़ीर बराए आपाशी मोहसिन लग़ारी ने कहा, नए मनसूबे बनाते वक्त आबी गुज़रगाहों का ख्याल रखना चाहिए। के बाद रावी में पहली दफ़ा पानी आए। पाकिस्तान में 88 में भी जो फ्लड आया था ना, वो भी पानी का क्वांटम ये नहीं था। हमारे ईस्टर्न रिवर्स में से 15 लाख क्यूसेक पानी आया है। ये पाकिस्तान का हिस्टोरिक हाई फ्लड है। पहली दफ़ा पाकिस्तान में देखा गया है कि 2 घंटे के अंदर 6 लाख क्यूसेक पानी बढ़ा है। 2 घंटे के अंदर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने ये रिहेबिलिटेशन दी। आज हमारे सारे बैराजेस अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट हैं, और हमने सिवाय उन 2 बैराजेस के जो रिहेबिलिटेट ना हो सके, एक सिदनाई और कादराबाद, उसके अलावा हमें किसी बैराज पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा सीरियस थ्रेट नहीं आया। वहाँ पे वेटलैंड भी होंगी, होनी चाहिए, अगर नहीं है तो क्यों नहीं।
वहाँ कब्जे थे जो दरियाओं ने छुड़वाए हैं। दरियाओं ने छुड़वाए हैं ना? दरियाओं ने छुड़वाए हैं जो आपने तो नहीं छुड़वाए ना? नहीं, हमने नहीं छुड़वाए, दरियाओं ने हुकूमत बेख्तियार है वहाँ पे। हम दरिया को रास्ता देंगे, जो हम कंस्ट्रक्शन मेजर करते हैं वो पानी के जो नेचुरल गुजरगाहें हैं, हमारे कोई भी प्रोजेक्ट्स हो, यही मोटरवेज बने, यही सड़कें बने, यही रेलवे ट्रैक्स बने, लेकिन वो पानी को साथ उसका रास्ता देने के लिए उसमें कंड्यूट्स बनाने चाहिए।